السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے وہ ذات جس سے خوشحالی اور صحت و سلامتی طلب کی جاتی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ معاشرے میں کورونا کی صورت میں موت کے گہرے سائے، مگر کسی میں خوف خدا باقی نہ رہا۔ نوسرباز معاشرتی اقدار کے ساتھ ساتھ دینی فرائض کا تقدس بھی پامال کرنے لگے۔ پتوکی میں نوسرباز گروہ نے شادی کے مقدس فریضے کا ڈرامہ رچا کر دلہے والوں کا گھر لوٹ لیا۔ نئی نویلی دلہن نے گھر کا تو صفایا کیا ہی، دلہے کے ارمانوں کا بھی خون کر گئے۔ شادی ایک مقدس فریضہ ہے اور کس ماں باپ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا چاہ نہیں ہوتا۔ سبھی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا گھر ملے جہاں ان کی بیٹی عزت اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے، لیکن نصرباز اس مقدس رشتے کو ایسا پامال کرتے ہیں کہ اب اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جنوبی پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں، جہاں ایک لڑکی نکاح کے اگلے ہی روز دلہا کا سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پتوکی کے ایک شہری کا نکاح کسی شادی کرانے والوں کی وساطت سے طے پایا۔ نکاح کی تقریب میں لڑکی کے ماں باپ اور نکاح خواہ شریک ہوئے اور معاملات انجام پا گئے۔ کہانی کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب دلہا صبح اٹھا تو دلہن 2.5 لاکھ روپے اور 1 تولہ سونا لوٹ کر فرار ہو چکی تھی۔ لٹیری نے اسی پر اتفاق نہ کیا بلکہ گھر سے جیٹھانی کے طلائی زیورات 30,000 روپے اور دیگر قیمتی اشیاء پر بھی ہاتھ صاف کر لیے۔ دلہا والوں نے ہاتھ پاؤں مارے اور کچھ خیر خبر لی تو سب کچھ فراڈ نکلا۔ نہ تو نکاح کی تقریب میں شریک مرد اور عورت لٹیری کے ماں باپ تھے اور نہ ہی نکاح پڑھانے والے کا کچھ اتا پتہ چل سکا۔ ہو سکتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ دلہے اور گھر والوں کو صبر آ جائے، مگر اب کون کس پر اعتبار کرے گا؟ رشتوں میں وفاداری کا پاس نہ رہا، جہلم میں خون سفید ہو گیا۔ معمولی تنازع پر بھائی نے بھائی کی جان لے لی، ملزم لاش ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ عصر حاضر میں لرزہ خیز وارداتوں کا ہونا معمول بن چکا ہے۔ سگے بہن، بھائی، عزیز و اقارب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے۔ ایسا ہی ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جہلم کے علاقے پنڈ دادر خان میں، جس کے نواحی علاقے سوڈی گجر، جہاں پر ثقافت کی انتہا ہو گئی۔ 50 سالہ شخص کو سگے بھائی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سفاق شخص حقیقی بھائی کی لاش ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے 24 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ رحیم یار خان میں ظلم کی ایک اور داستان رقم کر دی گئی۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بدترین تشدد کر کے سر کے بال مونڈ ڈالے۔ محمد فاروق کی رپورٹ۔ یہ افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھانہ سی ڈویژن کی حدود عباسیہ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پر 3 بہنوں نے لطیفہ نامی خاتون کو 2 سال تک گھر میں قید کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ملازمہ کی طرح اس سے اپنے گھر کا سارا کام بھی کروایا۔ لطیفہ بی بی کے مطابق اس کا ایک بیٹا بھی تھا جسے بااثر ملزمان نے کسی کو فروخت کر دیا۔ لطیفہ بی بی نے جب بیٹے کے بارے میں بار بار اصرار کیا تو بااثر بہنوں نے ظلم کی ایک بدترین داستان کو رقم کرتے ہوئے لطیفہ بی بی کے سر کے بال مونڈ ڈالے۔ خان سے یہی گزارش ہے، میری مدد کرو، میری آخری گزارش ہے، میرے ساتھ بہت جلدی میری مدد کرے، کوئی بھی ہو، میرے ساتھ انصاف چاہیے مجھے۔ ظلم و ستم کی ستائی خاتون موقع پا کر گھر سے بھاگ گئی اور ہیومن رائٹس والوں کے پاس پہنچ گئیں۔ میں سائمہ طارق، ممبر ہیومن رائٹس ضلع رحیم یار خان سے۔ یہ لطیفہ بی بی ہیں جو کہ میرے پاس آئی ہیں۔ یہ کہیں پر کام کرتی تھی اور تقریباً 2 سال تک اس پہ تشدد ہوتا رہا۔ جب انصاف کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو پولیس بھی بااثر ملزمان کے سامنے بے بس نظر آئی۔ کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ عوام کو ریلیف مہنگا پڑ گیا۔ لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں 15ویں روز بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اجمل خان کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کیا ہوئی؟ کوٹ سلطان میں بھی 15ویں روز پیٹرول کی قلت برقرار۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے پیٹرول پمپ کا چکر لگاتے رہے۔ جن پیٹرول پمپ پر پیٹرول موجود ہے وہاں پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے۔
शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रिक्वेस्ट करे सो मेहरबानी करन सही एमपी एमएन इलेक्शन लड़न आवन ई मेहरबानी करो असन वोट दो कुछ करे सो सब को लिया पेट्रोल लाजम दिता वने असन दा बहुत शुक्रगुजार हैं सारे नाल बाल सारे नाल नहीं पूरी देखो जितने देखो यके खणंदा है शोदे फिर पूरा सारा शहर जेड़ा ना बंद थिया पे पेट्रोल मोटरसाइकिल छिकी वजन गड्डियां छिकी वजन रिक्वेस्ट करने सब को पेट्रोल दे पैसे उवे जितने आगे 7 रुपए उतले देने लिया सब पेट्रोल दिता है। कैमरा टीम के साथ अजमल खान दस्ती, सच न्यूज, कोट सुल्तान लिया। मुल्क भर में 15 रोज से पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत है। शहरी कहते हैं कि कीमत कम होने से पेट्रोल नायाब हो गया। हमारी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। आवाम जो है ना इस तरह जलील हो रही है। चलो एटलीस्ट पेट्रोल जो है ना सस्ता तो किया है इन्होंने, तो उसके बावजूद उस पे जो है ना चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए ना हमारा। गवर्नमेंट कोई भी निकालती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, अभी नोटिफिकेशन निकलता ही नहीं है, ये लोग पहले ही महंगा कर देते हैं। इन्होंने पेट्रोल स्टॉक करके ब्लैक में बेचने के लिए आवाम को कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हमारी अपील ये है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी और इमरान खान से भी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। रहीम खान के इलाके टुलमजा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिससे शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। रहीम यार खान के इलाके ठोलमजा में महंगाई का जिन बेकाबू होकर रह गया। एशिया खुर्दनोश के निर्ख आम आदमी की पहुंच से दूर चले गए। आम आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं। हर वो चीज जो दिहाड़ीदार तबका के जेरे इस्तेमाल में है को पर लग गए। आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। आटा, घी, चीनी से लेकर सब्जी, गोश्त के रेट आसमान पर पहुंच गए। आम आदमी को खुआर करने की रही सही कसर पेट्रोल के बहरान ने पूरी कर दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब। एहलियान इलाका ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई पैदा करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि दिहाड़ीदार तबका सुख का सांस ले सके। कैमरामैन शाहिद जावेद सयाल के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठोलमजा। हाफिजाबाद में महंगाई का तूफान। मुनाफाखोर अशिया खुरनोश मनमानी कीमतों पर बेचने में मसरूफ, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज मंजर आम से गायब हैं। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदार एशिया खुर्दनोश की चीजें मनमाने रेट पर बेचने लगे, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरेआम से गायब। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद एशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी वाकया न हो सकी, जिससे लॉकडाउन के सताए हुए शहरी मुसलसल परेशानी का शिकार हैं। शहरी आए रोज चीनी, आटा, दाल और फ्रूट और सब्जी माफिया से लुटने पर मजबूर है। ऊपर से नजायज मुनाफाखोर माफिया भी मुसल्लत हो गया है। चीनी का रेट हुकूमत ने 70 रुपये दिता हुए, पर किसी दुकानदार कोई बंदा नहीं ऐसा जो दिल ताजर हजरात 70 रुपये किलो चीनी बेचते हूँ 60-80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है। आटे का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पेट्रोल वगैरह नायाब है मार्केट। हुकूमत के दावों तक ही महदूद रह गए और नजायज मुनाफाखोरों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ तो लॉकडाउन से गरीब तबके सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, दूसरी जानब महंगाई और बेरोजगारी नुकसान पहुँचा रही है। हुकूमत मजदूर तबके का रिलीफ देने के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई पर भी कंट्रोल करे ताकि आम आदमी सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ सवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। लोधरा की तहसील केरोड पक्का में एक तो किसान पहले ही कुदरती आफात की जद में है, जबकि दूसरा हुकूमत की जानिब से बजट में भी किसानों को कोई खातिर रिलीफ नहीं मिल सका, जिस वजह से किसान हालिया बजट से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। राव फखरुज़्ज़मान की रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए किसानों का खुद कफील होना निहायत ज़रूरी है। हालिया दिनों टिड्डी दिल के हमले ने दीगर इलाकों की तरह केरोड पक्का में भी खड़ी फसलों और आम के बागात को शदीद मुतासर किया, जिस पर किसानों को बजट में हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलने की बड़ी तवक्कुआत थी, मगर हालिया बजट ने किसानों की तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी हवाले से किसानों का कहना है, कल मौजूदा अपना पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश है, जिंदे विच किसानां दा वास्ते 10 अरब रुपया रखा गया। बिल्कुल ही मामूली थोड़ा ही है। किसान बड़े परेशान आई। पहले भी किसानां को बड़ी उम्मीद आई इन बजट दे विच को रिलीफ मिल सी, ते इन बजट ते मायूस है किसान दी किस्मत भी ऐसी है ना जिंदे नाल हुकूमत साथ करेंदी पई है, ना ही कोई अल्लाह ताला दी तरफों कोई रहमत आसी इंशाअल्लाह उम्मीद करने असां ते, लेकिन गवर्नमेंट तो असे बड़ा मायूस हैं जी। किसानों का यही कहना है कि जो गुज़िश्ता दिनों बजट पेश किया गया इसमें किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला। हालिया होने वाली बारिशों और टिड्डी दिल ने फसलों का बहुत नुकसान किया, जिससे किसान बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हुकूमत
पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है किसानों को उनकी ज़रूरत अशिया पे सब्सिडी दी जाए। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़ के रोड पक्का। टंडोल अयार के महकमा एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने वफाकी बजट 2020 और 21 को मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। टंडोल के महकमा एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने वफाकी बजट 2020-21 को रद्द कर दिया। मुलाजमीन की जानिब से वफाकी बजट को गवर्नमेंट मुलाजमीन दुश्मन बजट करार देकर एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी की। गवर्नमेंट मुलाजमीन का कहना था कि इस महंगाई के दौर में MPA, MNA और वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह तो बढ़ा दी गई है, लेकिन हमारी तनख्वाहें न बढ़ाकर वफाकी हुकूमत ने ज्यादती की है। इन्होंने मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बजट में गवर्नमेंट मुलाजमीन का जो सालाना बजट बढ़ाया जाता है उसे बढ़ाया जाए ताकि मुलाजमीन में तशवीश की लहर जो दौड़ पड़ी है वो खत्म हो सके। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोल अयार। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान का कहना है कि इस वक्त मुल्क के 40 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। टिड्डी दल की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को अभी भी खतरात लाहक हैं। तर्जमान NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान की 29, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और सिंध के 3 अजला टिड्डी दल से मुतासर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बलोचिस्तान में अवारान, नोशकी, चागी, गवादर, अथल, पंजगोर, खारान और क्वेटा के अलावा दीगर अजला भी टिड्डी दल से मुतासिर हैं। NDMA के तर्जमान के कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में DI खान, टांग, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, कुरम, औरकजई और खैबर के अजला टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रोज पंजाब के किसी जिला से टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुआ। टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि 1288 मुश्तरका टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 24 घंटों में 3,12,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। NDMA के तर्जमान के कहना था कि बलोचिस्तान में 5,300 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,000 हेक्टेयर रकबा की ट्रीटमेंट हुई, जबकि सिंध में गुज़िश्ता रोज 500 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 6,23,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। राजनपुर के इलाके रुझान में एहसास प्रोग्राम सेंटर के बाहर शहरियों का हुजूम लग गया। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। रुझान में शहरियों ने समाजी फासला और हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी। तहसील इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे की गफलत के पास इंसानी जिंदगी खतरे में पड़ गई। एहसास कफालत प्रोग्राम में समाजी दूरी का नफाज न होने पर मोहल्ले वबा फैलने का खदशा। इमदादी रकूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल के बाहर मर्दों का हजूम। मर्दों की कसीर तादाद एक साथ जमा होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने लगा। इमदादी रकूम सेंटर के बाहर SOPs के खिलाफ वर्जी, समाजी फासला और ना ही मास्क के इस्तेमाल। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा ये एहसास प्रोग्राम का सेंटर है, लोगों को बड़ा हजूम है, रश है, ना मास्क पहनते हैं ना कोई चीज़। हम हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि इनके बारे में कोई चीज़ सोचे। और कोरोना का बड़ा ही खतरनाक बीमारी है, पहले भी फैला हुआ है, मूजी मर्ज है, इससे बचना चाहिए और एहतियात करना चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए इनके साथ इनकी सख्ती करें इनके ऊपर। इनको बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। गरीब आदमी से कोरोना लग गया तो वो कहाँ पे जाएगा। हमेशा के लिए कुछ ऐसे आदमी होने चाहिए कि जो आवाम का भी ख्याल रखें और अंदर वालों का कानून का खिलाफ रखें। और यही मामलात के बारे में हमेशा लोगों को धक्के देकर बाहर फैला जाता है कि तुम बाहर निकल जाओ। जिनके पास वैसी रिकॉर्ड नहीं है वो कहते हैं कि बाहर निकल जाओ। वो तस्दीक नाम भी दिखाने के बावजूद भी उनको धक्के देकर निकाला जाता है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पंजाब से मुतालबा किया है कि तहसील इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे की गफलत के खिलाफ फिलफौर नोटिस लिया जाए ताकि इस कोरोना जैसी वबा से बचा जा सके। कैमरामैन मलिक उज़ैर, तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज़, रुझान। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार 3 माह से ज़ायरीन के लिए बंद है। पाकिस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार कोरोना वायरस की वजह से आम ज़ायरीन के लिए मुसलसल बंद है। दरगाह के गिरदोनवा कारोबार मुकम्मल तौर बंद है। सेवन के शहरियों का रोजगार दरबार कलंदर लाल शहबाज पर आने वाले ज़ायरीन पर होता है। दरबार कलंदर लाल शहबाज बंद होने के बाद दरबार के गिरदोनवा तमाम एशिया के दुकानें मुकम्मल तौर बंद हैं और लॉकडाउन में नरमी के बाद दुकानदारों का रोजगार भी सख्त मुतासर होने लगा है। दरगाह के गिरदोनवाही में फूल, चादरें, लंगर खाने समेत दीगर कारोबार करने वाले 3000 से ज्यादा खानदानों का जरिया मुआश दरबार कलंदर लाल शहबाज पर आने वाले ज़ायरीन पर होते हैं। मगर दरबार मुकम्मल बंद होने के बाद 3000 खानदान फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जो मज़ार बिल्कुल 3 महीने से मुसलसल बंद है, इसी वजह से हमारा कारोबार इसी दरबार के वजह से होता है, कारोबार के वजह से ही करते हैं। हमारा जो कारोबार है सरकार कलंदर से ही वापस है।
4 लोग आते हैं तो सरकार कलंदर रसाई के लिए आते हैं, बाकी इधर न कोई कमाने का जरिया है, न कोई मंडी है, न कोई ऐसे ही कोई मतलब कारखाने वगैरह हैं जहाँ पे हम रोजी करके कमाएं। जब दरबार खुल जाएगा फिर हमारा कारोबार चलेगा। अभी तक दरबार जो है बंद हैं सारे, वो देखो धूप पर खड़ा है बेचारा परदेसी, सारे ऐसे वापस होते हैं। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी सिंध सरकार से कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद करते हुए दरगाह लाल शहबाज कलंदर को आम ज़ायरीन के लिए खोलने की अपील की है, ताकि गरीब अवाम अपने बच्चों का पेट गुजर सफर कर सके। कैमरामैन राजन सोलंकी के साथ शहमीर खान ओठो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। कसूर में बढ़ते कोरोना के केसेस के पेश नजर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कसूर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स और जेल में हिफाजती किट्स तकसीम की गई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कसूर के सदर डॉक्टर शफीक अहमद शेख और PTI के रहनुमा डॉक्टर जीमुद्दीन लखवी ने अपनी मदद आप के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कसूर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल व डिस्ट्रिक्ट जेल में हिफाजती किट्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। इस मौका पर सदर डॉक्टर शफीक का कहना था कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है और पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं इस बीमारी के, इस वबा के हाथों परेशान हैं। जहाँ कीमती अमवात, इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, उसके साथ साथ मुल्कों की इकॉनमी जो है वो भी ज़मीन बोस हो चुकी है। इस मौका पर डॉक्टर जीमुद्दीन लखवी ने आलमी वबा कोरोना से जान की बाजी हारने वालों की मैयतों की बेहरमती और खास तौर पर बात की और कहा कि इसको साइंटिफिकली कि एक मरीज फौत हो गया और वो कोरोना का मरीज है, उसको आप एक बैग में डाल देते हैं, उधर ही अंदर ही ICU में ही उसको एक बैग में डाल के उसके ऊपर वो स्प्रे कर देते हैं। अब उसको उठा के आप वो जो ताबूत है उसमें ला डालते हैं और उसको फिर दोबारा स्प्रे करते हैं, फिर ताबूत बंद करके ऊपर वो कील उसको बंद करते हैं और वो रवायती जो आखिरी कील है जब वो ठोक देते हैं उस ताबूत में, उसके बाद वो कतन कोई उसका खतरा नहीं कि उससे जरासीम बाहर निकलेंगे। इस मौलक वबा में हर शहरी को मिलकर अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वाले मसीहा की जानों को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा बेग, सच न्यूज़ कसूर। जंगलात को टिम्बर माफिया से बचाने और फराज की अदायगी के लिए जरूरी वसाइल दस्तियाब न होने के बावजूद मुलाजमीन जिंदगियां दाव पर लगा देते हैं। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों, डाकुओं और टिम्बर माफिया से नबर्द आजमा होने वाले महकमा जंगलात के मुलाजमीन जान हथेली पर रखकर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये मुलाजमीन बगैर असला और सहूलियात के दरख्तों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। चोरों को पकड़ने के लिए सड़क किनारे फसलों में छुपते हैं तो कभी बगैर रोशनी के पैदल जंगल में घूमते हैं। अपने फराइज की तकमील के लिए मुश्किलात झेलने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों और सहूलियात की कमी पर शिकवा कुना है। हमें जो रात को रेड करते वक्त ये जो हमें मसाइल पैदा होते हैं, हमारे पास ना तो कोई असला है जबकि चोरों के पास असलहा होते हैं, और यहाँ पे रात को जंगल में मतलब मुख्तलिफ जानवर होते हैं तो हमारे इनके साथ सामना होता है। तो हमें जो है ना हुकूमत से अपील है कि कोई असला वगैरह दिया जाए। महकमा जंगलात के मुलाजमीन की कमी, रिस्क अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस का ना होना और सख्त कवानीन की कमी इन मुश्किलात में मजीद इजाफे का सबब बनती है। इस वक्त हम जंगल में मौजूद हैं। ये बेसिकली रात का टाइम है क्योंकि जो मतलब टिम्बर माफिया है वो तकरीबन रात को वो कार्रवाई करते हैं। जो हमारे कीमती दरख्त है जिनमें कीकर, शीशम, पॉपुलर, सफेदा जो स्टैंडर्ड दरख्तों में भी आते हैं, वो रात को इनको मतलब काटते हैं। पूरी उनका नेटवर्क है एक यहाँ, लेकिन हम भी अपनी रैकी कंप्लीट करके मेरी पूरी टीम तो हम उनको बगैर किसी, क्योंकि बेल्ट फोर्स हम हैं लेकिन हमें आर्म नहीं किया गया, हम अपनी जान दांव पे लगाकर उनको पकड़ते हैं। मुतअद्दिद बार मुलाजमीन डाकुओं की गोलियों और तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जिसके लिए बाकायदा क्विक रिस्पांस फोर्स का क्याम नागुज़ीर है। खतरात के बावजूद दरख्तों की हिफाजत पर मामूर ये एहलकार किसी कौमी हीरो से कम नहीं। इनके मसाइल के हल और दरख्तों की हिफाजत के लिए हुकूमत को संजीदा इकदाम उठाने होंगे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा दिया गया। वादी क्वेटा में क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केस्को ने मरकजी हुकूमत के ऐलानात के बरअक्स गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। दिन भर शहर के अक्सर फीडरों से बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने के बायस जहां शहर में एक जानिब घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस तवील लोड शेडिंग ने शहर में कारोबारी सरगर्मियों पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब किए हैं। बहुत मुतासिर हो रहा है। हम सुबह से खड़ा है, हमने गाड़ी खड़ा किया, बिजली नहीं है, परेशानी है यार, हम लोग पानी भी नहीं है,
तो तकरीबन 24 घंटे में हम लोगों का बिजली है, 12 घंटे लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग से कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग की टाइमिंग को कम करे ताकि हम अपनी कारोबारी सरगर्मियों पर तवज्जो दें। लाइट का कोई टाइमिंग ही नहीं है, अभी कभी 6 घंटे, कभी पूरा दिन, कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, ये बिजली का हाल है। इस पे आप बताएं कि क्या करे इंसान, क्या करेगा। किराए की मकान है, दुकान किराए की है, मजदूर है, वो बेचारे आते हैं मेहनत करने के लिए, वो सारे परेशान हो के शाम को घर वापस, क्या हम लोग उनको देवे, क्या हम लोग ले जावे, क्या किराए वालों को दे जावे। बिजली की इस तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से दीगर मसाइल के साथ साथ कोयटा में पानी की किल्लत का मसला भी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। लिया में चौक-आज़म शहर की पहचान मिनी मीनार यादगार खस्ताहाली का शिकार है। तारीखी इमारत तो किसी भी शहर की पहचान समझे जाने वाले विरसा की हिफाजत जहां हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वही जिंदा कौमों का शेवा भी। लिया के नवा इलाका चौक-आज़म जहां से मुल्क भर की ट्रैफिक का गुजर रहता है, चौक-आज़म शहर के वस्त में वाक़े चौक के मरकज में मीनार पाकिस्तान के तर्ज पर बनाए जाने वाले मीनार को चौक-आज़म की पहचान कहा जाता है। वहीं ये मीनार चौक-आज़म की इंफरादियत का बायस भी है। चौक-आज़म की पहचान कहलाए जाने वाले मीनार को 90 की दहाई में चौक-आज़म म्युनिसिपल कमेटी के पहले चेयरमैन ने मीनार पाकिस्तान के तर्ज पर तामीर कराया। इसी मीनार को मिनी मीनार पाकिस्तान भी कहा जाता है। 30 साल गुजर जाने के बावजूद म्युनिसिपल कमेटी की गफलत के सबब मीनार यादगार की तज़ीन और आरइश और मुरम्मत न कराई जा सकी। मीनार की बुनियादें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। रोजाना की बुनियाद पर दर्जों छोटी बड़ी गाड़ियां मीनार के करीब से गुजरती हैं। मीनार खस्ताहाली के बायस गिरकर किसी भी बड़े साने का सबब बन सकता है। चौक-आज़म की पहचान इस मीनार की तज़ीन और आरइश और मुरम्मत से जहाँ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, वहीं तारीखी इमारत की इस यादगार को महफूज भी बनाया जा सकता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। रहीम यार खान के इलाके चाचना शरीफ में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। दरिया सिंध चाचना शरीफ बस्ती कुड्डन की हजारों एकड़ पर तैयार फसल और घर दरिया बुर्द हो गए। 1 साल से जारी दरियाई कटाव हंसते बसते घरों को बहा कर ले गया और अच्छे अच्छे जमींदार अर्श से फर्श पर आ गए, लेकिन जिला इंतजामिया खामोश। सारी काफी बस्ती थे दरिया ज़्यादा च आ गई है, लेकिन इतना सारा जितना बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल दरिया च आ गए। इतना कोई तालीम का कोई बंदोबस्त क्या नहीं, खुले आसमान तले बच्चे गुजरे पे। काफी असा क्या सारे जितना पड़ोसी था हमसायन सब खुले आसमान तले गुजरे पे। दरियाई कटाव ने किसानों के साल भर की मेहनत के बाद तैयार फसल को बड़े पैमाने पर अपनी लपेट में ले लिया। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद किसी हुकूमती नुमाइंदे को होश न आया। दरिया सिंध कटाव इतनी थे तकरीबन इथों के 3 किलोमीटर दूर तू 500 एकड़ जरा अगू ते सोरा है। ही टाइम तक कितनी बस्तियां या कितनी स्कूल या कितनी मुतासिर बाल दी पढ़ी है या जो कुछ थे वो गवर्नमेंट को पूरा इतना के विजिट करें, लेकिन हर चीज का इल्म है पिया। इतना के गवर्नमेंट का कोई बंदा मौजूद का नहीं जो कोई सिर्फ सहारा चले इंसान को जो भाई तो सकार गिनो। अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता देखकर मुतासरा निहायत ही अफसरदा हैं और सोच रहे हैं कि आप अपने घर वालों का पेट कैसे पालें। ये अफराद खुले आसमान के नीचे बैठे अवामी नुमाइंदों का या किसी मसीहा के मुंतजिर हैं ताकि वो फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। चौक सरवर शहीद के मोहल्ला 5 मरला स्कीम का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। मेन गलियों के सीवरेज लेने के होल के ढक्कन गायब हैं। ढक्कन ना होने के सबब सीवरेज के गंदे पानी के ताफुन से इलाका मकीन परेशान है। गलियों के दरमियान में खुले होल हादसा को दावत दे रहे हैं। इलाका मकीनों को गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो 5 मरला स्कीम को आने वाली 2 मेन गलियां हैं, इनके तमाम जो मेन होल हैं उनके ऊपर एक के ऊपर भी कोई मेन ढक्कन नहीं है। यहाँ से आने जाने वाले सब लोग जो परेशान हैं और हमारे बच्चों को आए दिन मसले मसाइल यहाँ पेश होते हैं। कोई बड़ा हादसा होने का इम्कान है, लिहाजा हमने बार बार जो है इतला दी है म्यूनसिपल कमेटी वालों को इसको मेन होल ढक्कन जो है वो फिलफौर लगवाए जाएं, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। गंदी बदबू से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। 5 मरला स्कीम में जितने गटर खुले खड़े डू गलियां दे विच के बड़े बड़े हॉल है, नहीं तो कोई है कि ढक्कन कह नहीं। म्यूनसिपल कमेटियां को असा इतनी दफा के कि कोई ढक्कन ढियो साढ़े बाल विच ढांदे ते बदबू फैलदी, उन्हें साड़ी गाल कह नहीं सुनी।
ہون تک اتنے پریشان تھے کھڑے ہیں کہ ہے کی ڈھکن نہیں دیتے کہہ نہیں رات کو کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور تھی دے. متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں. میونسپل کمیٹی سرور شہید کو متعدد بار آگاہ کیا گیا مگر میونسپل کمیٹی سرور شہید نے کوئی نوٹس نہ لیا. انتظامیہ کسی بڑے حادثے کی منتظر لگتی ہے. محلہ 5 مرلہ اسکیم کے باشندوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اسسٹنٹ کمشنر کوٹدو سے مطالبہ کیا ہے کہ 5 مرلہ اسکیم کے جو سیوریج کی لائنیں ہیں ان کے اوپر جو ڈھکن جو ہے وہ غائب ہیں, یہ ڈھکن جو ہے وہ لگائے جائیں تاکہ مختلف حادثات سے جو ہے وہ بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی, سچ نیوز چوک سرور شہید. کبیروالا کے نوائی علاقہ بستی لال والا میں بجلی کی لٹکتی ہائی وولٹیج تاریں علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے. کبیروالا کے نواحی علاقہ بستی لال والا میں پچھلے 1 سال سے بجلی کی ہائی وولٹیج تاریں ٹرانسفارمر سمیت مکان کی دیوار سے آ لگی ہیں. کئی دفعہ گئے ہیں وابڈا نے منتاں کیتیاں نے جا کے ایس ڈی او نے بھی آخیا ہے جا کے سر ساڈا مسئلہ ہے تو سانو حل کرو. اتنے کئی جانور چرے مر گئے نے. اور شارٹ سرکٹ کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی روزانہ کا معمول بن گیا ہے. گرے ہوئے مین پول سے لڑھکتی ہوئی ہائی وولٹیج تاریں مکان کی چھت سے ہوتے ہوئے درختوں سے ٹکراتی ہوئی زمین کے اتنے نزدیک آ گئی ہیں کہ قریب سے گزرنے والے بچوں کے ہاتھ آسانی سے ان تاروں تک پہنچ جاتے ہیں اور کئی دفعہ جانور کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو چکے ہیں. 1.5-2 سال ہو گئے تے نکے نکے ساڈے بچے نو تو پکھو باندھے تائیں اگ بلدی تارا سڑدی 1.5 سال ہو گئی ہے. جکی ہوئی تارا سیر نوا کے تلے ٹپنا پوندا ہے. ہمارے تقریباً 1.5 سال سے تاریں نیچے گری ہوئی ہیں تو نہ ہماری لیبر ادھر کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تقریباً 1.5 سال کا ٹھیکہ ہم جیب سے دے چکے ہیں. یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور وابڈا والے سے بھی درخواست کی, ابھی تک ہمارا کوئی حل نہیں ہوا ہے. اہل علاقہ نے وابڈا کے مجاز افیسران سے جلد از جلد تاریں بدلنے کی اپیل کی ہے تاکہ اس عذاب سے نجات مل سکے. کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی, سچ نیوز کبیروالا. خانیوال کے شہر سرائے سدھو کا اکلوتا لیڈیز پارک کھنڈر بن گیا. بلدیہ عملے کی مجرمانہ غفلت سے شہر کا اکلوتا لیڈیز پارک کھنڈر بن گیا. شہر سرائے سدھو کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. پارک میں موجود جھولے ٹوٹ چکے, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. گندی جڑی بوٹیوں نے پارک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. پارک کو عوام کے لیے بند کر کے بلدیہ کی طرف سے پارک کو ویئر ہاؤس اور گدا ریڑیاں کھڑی کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ملازمین گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں. عوامی سماجی حلقوں کا ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی اور اے سی کبیروالا سے پارک کو اصل حالت میں بحال کر کے عوام کے لیے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا نقوی, سچ نیوز, سرائے سدھو. مظفر گڑھ کی تحصیل سیناوا میں گندم کی فصل کٹے ہوئے 4 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا لیکن خادم حسین کی گندم کی فصل کھیتوں میں ہی خراب ہو رہی ہے. سیناوا کے علاقے موزہ پتی نہج کا خادم حسین انصاف کے لیے رول گیا. گندم کی فصل کو کاٹے ہوئے 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا مگر خادم حسین کی فصل ابھی بھی کھیتوں میں باقی ہے. 6 کنال پر گندم کی فصل کاٹ کی تھی لیکن ملزمان کاٹنے نہیں دے رہے. صابر حسین اور غلام مصطفیٰ سے ہماری پرانی رنجش چل رہی ہے جس کی وجہ سے فصل نہیں کاٹنے دے رہے اور ہماری بجلی کی میٹروں کی تاریں بھی کاٹ دی ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ ملزمان اتنے با اثر ہیں کہ وہ ہمارے ملکیتی گھر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. منیر حسین, سچ نیوز, سیناوا. چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں ٹرانسپورٹ اڈوں کی منتقلی کے خلاف آل پاکستان ٹرانسپورٹ یونین, تاجر برادری اور شہری سراپا احتجاج بن گئے. تحصیل شب قدر بازار میں 2 بڑے ٹرانسپورٹ اڈوں کی بازار سے باہر منتقلی کے خلاف شب قدر بازار میں احتجاجی کیمپ لگایا گیا جس میں شب قدر مومن اور دیگر علاقوں کے عوام ٹرانسپورٹ مالکان اور تاجر برادری نے شرکت کی. احتجاج کے باعث دونوں ٹرانسپورٹ اڈے بند تھے جسے مومن, باجوڑ اور دیگر علاقوں کے مسافروں کو سخت گرمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پشاور اور دارالحکومت اسلام آباد سے آئے ہوئے آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر دورانی گروپ کے مرکزی صدر شفقت دورانی, صوبائی ٹرانسپورٹ کے مختلف یونین کے صدور نور محمد خان مومن, صاحب شاہ خان, جنرل سیکرٹری مراد خان اور دیگر نے کہا کہ شب قدر بازار سے ٹرانسپورٹ اڈوں کی منتقلی غیر قانونی ہے. بازار سے کئی کلومیٹر باہر ویران جگہ پر منتقلی سے تاجروں, دکانداروں, گاڑی مالکان اور عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہوگا جو کہ عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ٹرانسپورٹ برادری کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس میں دیگر مسئلے مسائل بھی ہیں. لہٰذا میں نے آل پاکستان فیڈریشن آف لیبر دورانی گروپ اور ہمارے صدر صاحب شاہ یوسف زئی صاحب نے, صوبائی صدر نے, ہم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر صوبائی گورنمنٹ نے اس کے اوپر اس معاملے پہ ایکشن نہ لیا
तो फिर हम मजबूर होंगे। जिस तरह के मैंने अपनी तकरीर में कहा है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि आने वाली 15 जुलाई पे फिर हम वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे, तादम मर्द भूख हड़ताल होगी। मुजाहिरीन ने शब कदर बाजार में एहतजाजी वाक़ के साथ शाहराहों पर धरना भी दिया और टीमें शब कदर और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। कैमरा टीम के साथ सैयद नादर शाह, सच न्यूज, तहसील शब कदर। टोबा टेकसिंग में सूरज का पारा हाई हुआ तो नौजवानों ने गर्मियों को भगाने के लिए नहरों का रुख कर लिया। टोबा टेकसिंग लॉकडाउन के बाद शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचा तो मनचले नौजवानों ने नहरों का रुख कर लिया। शदीद गर्मी और हबस से सताए नौजवान नहर पर नहाते हुए नजर आए। नौजवानों ने गर्मी से बचने के लिए नहरों को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। नौजवानों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद है। गर्मी से बचने के लिए दोस्तों के साथ नहाकर एंजॉय 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसलिए गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम ट्यूबवेल का पानी जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, नहर में नहा रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने के लिए यहाँ पे खाना छाना भी देखे हैं साथ। नौजवानों ने दोस्तों से मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया और ट्यूबवेल के ठंडे ठार पानी से नहाकर गर्मी को भगाया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेकसिंग। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सखर के शहरियों ने SOPs की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। गर्मी हो गई है इतनी ज्यादा सखर में, क्या करें, मास्क कैसे पहनूं बताओ ना। बार बार लाइट जा रही है, लाइट का टाइम ही नहीं है, क्या करूं बताओ। बच्चे गर्मी में बैठे सारे दिन, बार बार लाइट जा रही है और मास्क कैसे पहनूं भाई, सार्स लौट गई जा रही है। गर्मी बहुत है, हम मास्क पहन रहे हैं, पसीना इतना निकल रहा, मास्क गीला हो रहा है। यहाँ तक कि मास्क जब गीला हो रहा है, बैक्टीरिया जो है, जरासीम जो है हमारे अंदर वैसे ही जा रहे हैं, तो मास्क पहनने का फायदा नहीं है। बिजली है ना क्या है, गर्मी लगी पड़ी है और मास्क वगैरह जो लगा रहे हैं तो ऊपर से गर्मी की शिद्दत इतनी है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है हमें। और बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग लोगों ने बढ़ा दी है। जो कमर्शियल बंद है तो घरेलू सार्फिन को तो बिजली पूरी दे ना, ये गवर्नमेंट इनको चाहिए। तो बंदे घर में बैठें, तो घर में लाइट होगी तो बैठेंगे ना वो लोग, घर में लाइट ही नहीं होगी तो बंदे तो बाहर ही निकलेंगे। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गन्ने के शरबत की मांग बढ़ गई। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है। हैदराबाद शहर भर में गन्ने की शरबत में इजाफा हो गया है। गन्ने की मशरूबात को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मियों के मौसम में हम गन्ने के शरबत का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि गन्ने का शरबत से ही हमें कई विटामिन सेहत के लिए मिलते हैं। जो ना गन्ने का शरबत पी लूं, क्योंकि गर्मी का सीजन काफी पीक के ऊपर है और ये मैदे और जिगर के लिए काफी सेहतबख्श है। गन्ने के पीने से ये फायदा है, जिगर में जितनी गर्माश है वो खत्म हो जाती है। जो हमारे विटामिन सी और दूसरे मिनरल जो है उसको बूस्ट अप करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, जो हमारी मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के काम आता है। शहरियों का मजीद कहना था कि गन्ने की मशरूबात पीने से जिगर की गर्मी, यरकान और थकावट व प्यास को दूर करता है। गन्ने के शरबत बनाने वाले कारीगर का कहना था कि गन्ने से तैयार मशरूबात को मजीद टेस्ट के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पीने वालों को मजीद अच्छा टेस्ट महसूस होता है। इसके फायदे ये, इसकी तासीर ठंडी है, गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है और खास तौर जमीन से उगता है और खास तौर पे अगर कोई पीलिया वाला होता है उसके लिए समझो दवाई यही है। गर्मियों के मौसम में लोग ठंडे मशरूबात बिलखुसूस गन्ने के शरबत को ज्यादा तरजीह देते हैं, खुद भी पीते हैं और अपने घर वालों के लिए भी पार्सल ले जाते हैं। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहां अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। छोटी सी दिखाई देने वाली चेरी बेहद पसंद किए जाने वाला फल है। मुल्क के रसीले और सेहत बख्श फलों में चेरी भी शामिल है। चेरी को अगर पहाड़ी इलाकों के फलों का बादशाह कहा जाए तो बेजान ना होगा। खुशनुमा, खुश रंग और खुश जायका दिखने वाली छोटी सी चेरी ग़िज़ाई से भी भरपूर होती है। चेरी में मौजूद मादनी अनासिर जिनमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, कोबालामिन, कार्बोहाइड्रेट, हेमोग्लोबिन, विटामिन ए और डी, शुगर और प्रोटीन वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। चेरी के शाइक चेरी को बतौर मशरूब भी इस्तेमाल करते हैं, जो काफी फरहत बख्श होता है। चेरी को छोटी और बड़ी उम्र के अफराद सभी शौक से खाते हैं। स्टार्टिंग है और सस्ती भी है, तो इस वजह से कंटिन्यू लेके जाते हैं। बालाई इलाकों की ये सौगात चेरी पहले कराची फिर सिंध के दीगर इलाकों में पहुंचती है। कैमरा टीम के हमरा आशिक कुरैशी, सच न्यूज, नवाबशहर। लोधरा पुलिस की जनाब पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन की हदायत पर जिला लोधरा में जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना जल्लाराय के SHO जफर गरवा के सरबराही में चौकी थाना जल्लाराय के इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल बुआर ने पुलिस टीम के हमरा जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए डकैती के मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 3 डकैतों वसीम उर्फ गन्नू,
शाकिर और अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल किया गया असला, एक कलेशनकोव, 2 पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3 डकैतों को गिरफ्तार करने पर थाना जल्लाराई पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर का खात्मा मेरी अवलिन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन जारी रहेगा और जराइम पेशा अनासर के साथ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। बिहारी में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खिदमत सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों में हिफाजती किट्स तकसीम की गई। डीपीओ बिहारी एहसानुल्लाह चौहान का नाकाबंदी पॉइंट्स पर खुद जाकर कोरोना हिफाजती किट्स तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी एहसानुल्लाह चौहान ने कहा है कि जिम्मेवारी है कि हमारे जवान, हमारे अफसरान जो हर जगह पे अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में पब्लिक में मौजूद हैं, तो उनके लिए, उनको बचाने के लिए उनके लिए मास्क और उनको सैनिटाइज़र दिए जाएँ। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में पुलिस के जवानों को इन 2 दिनों में हमने 7000 मास्क जो तकसीम किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार की हिफाजत अवलिन तरजीह है। बिहाड़ी पुलिस की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती इंतजाम और एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिला में जिला बिहाड़ी के तमाम नाकाबंदी पॉइंट्स पर फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए जा रहे हैं ताकि पुलिस के जवान इस वबा से महफूज रहकर आवाम की खिदमत को जारी रख सकें। कैमरामैन शफीक के साथ सैयद हसनैन अली, साची न्यूज़, बिहाड़ी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। कसूर के नवाई इलाका खड़ियां का रिहायशी 11 साल का आजान हाथों और पाँव की पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है। आजान के इलाज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए खतीर रकम दरकार है। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, जिंदगी का नाम है दूसरों के काम आना। कसूर के इलाके खुडियां खास के मेहनत कश रहायशी मोहम्मद सद्दीक, जिसका 11 साल बेटा आजान बदकिस्मती से हाथों और पाँव की पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी की वजह से मासूम अजान के हाथों और पाँव की उंगलियां लकड़ी नुमा सख्त हो गई हैं, मगर घर में गुर्बत है। मासूम अजान का इलाज मुमकिन है, मगर महंगाई के इस दौर में जहां 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, वहां महंगा इलाज न होने की वजह से मासूम बच्चा हमेशा की मजदूरी की तरफ जा रहा है। मासूम अजान के वालिद का कहना है, मैं अपने बच्चे का काफी देर तो इलाज करवा रहा हूं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जिसका इलाज हो रहा है, तो उन्होंने हुण कहा कि CMH में जो इलाज सर्जरी होनी है, तो मैं माड़ा बंदा मैं नहीं करवा सकता। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब अगे कि बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करे। सदीक ने अपनी तमाम जमा पूंजी अपने बेटे के इलाज मुआवजे पर खत्म कर दी और अब किराए के मकान में रहते हैं। मासूम अजान की वालदा को अगर कोई फिक्र है तो वो अपने बच्चे के तारीख मुस्तकबिल की फिक्र है। उसका कहना है कि तकरीबन 6 माह हो गए इस गल से बहुत परेशान हाँ, तो मेरा बच्चा भी तंदुरुस्त होया ठीक हो जाए। वज़ीर आला पंजाब से ਅਸੀਂ गुजारिश करने कि दूसरा बच्चा जरा मेरा बच्चा भी खेल सके, सही हो जाए। हर किस्म की भाग दौड़ के बावजूद इलाज न होना गरीब बच्चे का नसीब कहलाता है। ऐसे हालात में कमसिन अजान अपने इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। उसका कहना है कि खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं सब बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मेरा इलाज कराएं। 11 साल अजान दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहता है, लेकिन वो बोझी मर्ज का शिकार है। अजान के वालिद का कहना है कि मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और मेरी मदद करें ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच टीवी न्यूज़, कसूर। गुजरांवाला में मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नजर रेस्क्यू 1112 दीगर मुताल्लिका इदारों की जानिब से फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। नहर अपर चनाब पर रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका महकमों की जानिब से सैलाब से कबल इंतजामात और हंगामी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 ने फर्जी मशकों का इनेकाद किया। मशकों के दौरान रेस्क्यू ने सैलाब से मुतासरा अफराद का इन्हला और डूबने वाले अफराद को बचाया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि मुतवक्का बारिशों, सैलाबी सूरत-ए-हाल और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो चनाब रिवर है, अगर 2014 का भी आप फ्लड का पैटर्न देखें, जब सबसे ज़्यादा फ्लड आया था, तो चनाब रिवर पे जितनी हमारे पास स्पेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जब वो पास थ्रू करता है तो 10-11 लाख क्यूसेक भी उसमें पानी आ जाए तो इंशाल्लाह दैट शैल नॉट बी एन इशू। ये 2 नाले हैं, एक वजीराबाद में और एक कामोकी में, जिनके अंदर फ्लड आ सकता है, फ्लड वाली सिचुएशन भी आ सकती है।
फर्जी मशकों में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। इसके अलावा मॉक एक्सरसाइज में ये भी बताया गया कि सैलाबज़दा इलाकों के लिए फ्लड कैंप कैसे लगाए जाते हैं। जी, मॉक एक्सरसाइज का बेसिक मकसद तो यही था कि हम पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की प्रिपेयर्डनेस को चेक करें और अपने लाइन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन को जो है वो बेहतर बनाएं। तो ज़िले इंतजामिया की क़यादत में सर सुहेल साहब डीसी साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने इसको लीड किया है। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122, हिलाले अहमद, महकमा वासा, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस ने शिरकत की। जी, गुजरावाला के जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं उसमें वजीराबाद का नाला पलखू का एरिया है, फिर उसके साथ जो बेले का एरिया है उसमें सोदरे का कुछ एरिया आ जाता है और आगे गुराली और कठोड़ वगैरह इस तरह के जो गांव हैं वो हैं। सैलाब की मुमकिन सूरत से निपटने रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकों ने शहरियों को ये पैगाम दिया है कि वो हर तरह की सूरत में शहरियों की जानों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कैमरामैन सादा सन के साथ मुमदल इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।